عدالتی سماعت کی بات کریں گے۔ ہائی کورٹ میں مالز اور شاپنگ سینٹرز میں پولیتھین بیگز کے استعمال کے خلاف کیس کی سماعت کی گئی۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ آباد میں پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ جسٹس شاہد کریم کا ڈی جی ماحولیات عدالتی حکم پر منوعن عمل کروانے کا حکم دیا گیا۔ پولیتھین بیگز کے استعمال سے نکاسی کا سسٹم متاثر ہو رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہا۔ پولیتھین بیگز نظر نہیں آنے چاہیے۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک اہم خبر کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ میں مالز اور شاپنگ سینٹرز میں پولیتھین بیگز کے استعمال کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصل آباد میں پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ جسٹس شاہد کریم کا ڈی جی ماحولیاتی عدالت حکم پر منوعن عمل کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ پولیتھین بیگز کے استعمال سے نکاسی کا سسٹم متاثر ہو رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہا۔ پولیتھین بیگز نظر نہیں آنی چاہیے۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں مالز اور شاپنگ سینٹرز میں پولیتھین بیگز کے استعمال کے خلاف کیس کی سماعت کی گئی۔ ہائی کورٹ نے فیصل آباد میں پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی لگائی۔ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، جنگ میں نجی سکولز کی جانب سے 15 اگست سے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کی ضلعی باڈی کی جانب سے فیصلہ مسترد کرتے ہوئے حکومتی پالیسیز پر تنقید کی گئی ہے۔ سکولز کو بند رکھنے سے چائلڈ لیبر بڑھنے لگا ہے۔ حکومت کی جانب سے کارروائی کے نتیجے میں گرفتاریاں دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ جنگ میں نجی سکولوں کی جانب سے 15 اگست سے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کی ضلعی باڈی کی جانب سے فیصلے کو مسترد کیا گیا۔ آپ کو بتایا کہ بین الصوبائی وزراء کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ سپٹمبر میں سکولوں کو کھولا جائے گا۔ حکومتی پالیسیز پر تنقید بھی کی گئی۔ سکولوں کو بند رکھنے سے چائلڈ لیبر بڑھنے لگا۔ حکومت کی جانب سے کارروائی کے نتیجے میں گرفتاریاں دینے کا بھی اعلان کیا۔ اویس خان سے بات کریں گے۔ جی اویس، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے۔ صوبائی حکومتوں کا جو ایک کانفرنس ہوئی، اس کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کیا، لیکن اس کو ماننے سے صاف انکار کیا گیا۔ بالکل، جنگ سمیت صوبہ بھر میں نجی تعلیمی ادارے 15 اگست سے کھولنے کی حتمی ڈیڈ لائن جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں جو پیما اور پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج فیڈریشن جو ہے شامل ہے، کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا کہ 15 اگست سے جو ہے وہ تمام نجی تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ایس او پیز اس حوالے سے جاری کرے۔ مزید جو ہے بندش اس کو قابل برداشت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ چیئرمین پاکستان پرائیویٹ اسکول کالج ایسوسی ایشن جو ضلعی چیئرمین میں سب موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت بتائے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، کس طرح یہ قابل عمل ہے اور اس کے بارے میں کیا سوچ جائے گی؟ بات یہ ہے کہ فروری سے لے کے اب تک تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ پرائیویٹ سکولز جتنے بھی ہیں پورے پاکستان کے وہ بند ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج قربانی کے جو موقع تھا تو مویشی منڈی کھلی تھی، بازاروں میں رش تھا۔ اس سے ہٹ کے آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ بسیں اور اس کے بعد ٹرین، ایروپلینز یہ رش سے بھرے ہوئے تھے۔ تو یہاں کرونا کچھ نہیں کہتا ان لوگوں کو، صرف تعلیم کے حوالے سے ہی میرا خیال میں تعلیمی ادارے ہی ان کا ٹارگٹ ہیں۔ تعلیم کا حشر پہلے ہی پاکستان کا بہت برا ہے اور رہی سے ہی کثر اس حکومت نے پوری کر دی۔ بات یہ ہے کہ والدین سے جو سروے کروایا گیا اس گیلپ سروے کے مطابق 74% پیرنٹس کہتے ہیں کہ اب ادارے کھول دینے چاہیے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق کہ اگر اسکول کھولے جاتے ہیں تو 36 لاکھ بچوں میں صرف ایک بچے کے متاثر ہونے کے چانسز ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں حکومت وقت سے ہماری گزارش ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے، کہ پرائیویٹ اسکولوں پر رحم کریں۔ ان کے جو 35 سے 36 لاکھ جو فیملیز ہیں جو اس سے وابستہ ہیں ڈائریکٹلی، اور اتنے ہی 25-30 لاکھ جو ہے انڈائریکٹلی ان سے وابستہ ہیں، ان کے روزگار کو بندوبست کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اسکولوں سے بچے باہر نکلے ہیں تو ایون کہ چائلڈ لیبر شروع ہو گئی ہے مختلف جگہوں پہ۔ چائلڈ لیبر کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اگر یہ اسکولوں کو نہیں کھولا جائے گا تو چائلڈ لیبر میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، خبر یہ کہ کرونا ایمرجنسی کے دوران دیگر منصوبوں کے رقم کے احساس پروگرام میں استعمال
पंजाब हुकूमत के माली मसाइल बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। महकमे ज़राअत के फंड्स एहसास प्रोग्राम में लगाने से किसान मुश्किलात का शिकार, खादों पर दी जाने वाली सब्सिडी रुक गई। कोरोना इमरजेंसी के दौरान दीगर मंसूबों के रकम का एहसास प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया। पंजाब हुकूमत के माली मसाइल बढ़ने का खदशा है, जबकि महकमा ज़राअत के फंड्स एहसास प्रोग्राम में लगाने से किसान मुश्किलात का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पीटीए सरकार के पास फंड्स कम पड़ गए। एहसास प्रोग्राम में दूसरे महकमों के पैसे लगाने से अब इशूज़ पैदा होने शुरू हो गए और इसमें महकमा ज़राअत तौसीफ की जानिब से जो मुख्तलिफ जो मद में सब्सिडी दी जाती है, जिसमें डीएपी पर, जिसमें डीएपी के अलावा जो पोटाश खाद है उस पर सब्सिडी मुहैया की जाती है। फिर इसमें कपास पर या दूसरी फसलें लगाने पर, स्प्रे पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो उसमें रुकावट बन गई है, क्योंकि जो फंड्स हैं वो एहसास प्रोग्राम में लगा दिए गए और इसकी वजह से अब सैकड़ों किसान हैं वो सब्सिडी से महरूम हो रहे हैं और अभी तक उनकी सब्सिडी के हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। सैकड़ों लोग पूरे फैसलाबाद में जो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस हो चुकी थी वो नहीं मिल पा रही, जिस पर मायूसी फैल रही है। क्योंकि वाज़ेह रहे कि तेलदार अजनास समेत मुख्तलिफ ऐसे काम होते हैं जिन पर गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ मुहैया किया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कायल किया जा सके। फिर इसमें डीएपी और पोटाश की खाद खरीदने पर भी रिलीफ मुहैया किया जाता है, लेकिन वो तमाम फंड्स जो जून से पहले जब एहसास प्रोग्राम जारी था तो उसमें मंगवा कर लगा दिए गए, जिस पर अब ये फंड्स का मामला जो है वो दर्जे साल। ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है। खरीदारों की शदीद कमी ने फैसलाबाद में भी सुनारों का कारोबार ठप कर दिया। गोल्ड डीलर्स हाथ पे हाथ धरे गाहकों के मुंतजिर हैं। सोने की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। बनाव सिंघार अब हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक जा पहुंचा। सोने की कीमत माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,29,000 रुपए तक जा पहुंची है। सराफा मार्केट झाल के सदर राना अली कहते हैं, दुकानों पर कारोबार ठंडा है, खरीदार हैं और ना ही कोई बेचने वाला यहाँ का रुख करता है। हमारे मुल्क में पहले बेरोजगारी है, मुल्क स्टेबल नहीं है, माशी तौर पर हम कमज़ोर रोज़ बरोज़ होते जा रहे हैं। उस वजह से हमारा कारोबार भी तबाह हो गया और हमारे जो बिजनेस के रिलेटेड हमारे मजदूर हैं वो बिल्कुल इस बिल्कुल भूख से और कारोबार में जा। सराफा एसोसिएशन के ताजर कहते हैं, कोरोना के पेश नज़र अब सरमायाकार अपना सरमाया दीगर कारोबारी शोबों की बजाय सोने के कारोबार में लगा रहे हैं, जिसको रोकना नागजीर है। उन्होंने कहा कि सूतर मंडी भी सूतर छोड़कर सोने के कारोबार में सरमायाकारी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो गया, वो सारे कोरोना में जो कारोबार करते थे वो अब सोने में इन्वेस्ट हो गए। हम सूतर मंडी वाले हैं वो तो रौला ये डालते हैं हमारा कारोबार तबाह हो गया, जबकि इन हैंड वो हमारे बिजनेस में आ गए। सोने से मुंसलिक ताजर कहते हैं, सोने की कीमतों को काबू करने के लिए इस सेक्टर में होने वाली गैर मामूली सरमायाकारी को रोकने की अशद जरूरत है। बसूरत दीगर सोने का रेट 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंचेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। सिटी टर्मिनल मंसूबे से मुतालिक अभी आपको ये बताएं कि फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए मयारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 3 साल कबल शुरू होने वाला सरकारी बस अड्डा सिटी टर्मिनल का मंसूबा लटक चुका है, जबकि नए रूट्स के लिए सर्विस शुरू ना हो सकी। किसी ने तकमील की जानिब तवज्जो भी ना दी। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। यह है फैसलाबाद का सिटी टर्मिनल, जिसकी तवस्सई का काम 3 साल कबल शुरू हुआ, मगर ताहाल इस सरकारी सिटी टर्मिनल का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे दीगर शहरों के लिए म्यारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। अड्डे की तामीर लटक जाने से नए रूट्स के लिए सर्विस शुरू नहीं हो सकी। 4 करोड़ रुपए की लागत से सिविल वर्कर का बेशतर काम मुकम्मल हो गया, जबकि 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंतजार गाह को भी फाल नहीं किया गया। ताहम सेक्रेटरी आरटीए जमीरुल हसन ने मामले को सुलझाने की नवीद सुनाई है। टर्मिनल पर टक शॉप और दीगर सहूलियात की फरहमी भी नहीं हो सकी, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, रेलवे क्रॉसिंग फैसलाबाद पर कहीं फाटक नहीं तो कहीं गेट मैन नहीं है। तब्दीली के दावेदार हुकूमत भी रेलवे फाटक का कुछ न कर सकी। रेलवे ट्रैक के 60 से ज्यादा मकामात पर फाटक मैन मौजूद नहीं, जिससे शहरी परेशान हैं। वक्त बदला, हुकूमत बदली, मगर रेलवे के हालात न बदल सके। रेलवे फैसलाबाद रीजन में जहां 80 से ज्यादा मुकामात पर बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग हादसात का सबब बनते हैं, वहां एक और चश्मकुशा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि रेलवे में 60 मुकामात पर अनमैन रेलवे क्रॉसिंग भी मौजूद हैं। यानी रेलवे क्रॉसिंग तो मौजूद है मगर गेट मैन नहीं। रेलवे ट्रैक की ऐसी क्रॉसिंग से शहरियों को अपनी मदद आप के तहत ट्रेन की आमद का अंदाजा लगाकर गुजरना पड़ता है, जो इंतहाई खतरनाक।
फैसलाबाद में रवां साल अब तक ट्रेन के 6 हादसा भी रूनमा हो चुके हैं, जिनमें माली नुकसान के अलावा 6 कीमती जानें भी चली गईं। रेलवे के निजाम में इस्लाहात के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर अमलन कुछ नहीं किया गया। नाखन न लिए तो ये अनमैन रेलवे क्रॉसिंग खतरनाक हादसा का सबब भी बन सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद के बाद अब बुचियाना का रुख करेंगे। बुचियाना के इलाके जफरवाला से जड़ावाला तक 23 मकामात रेलवे फाटक से महरूम है। तमाम मकामात पर बैरियर्स लगाकर रास्ते को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आपको अपडेट करें हैं, बुचियाना के इलाका जफरवाल से जड़ावाला तक 23 मकामात रेलवे फाटक से महरूम है। तमाम मकामात पर बैरियर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे राना एहसान अली से। जी राना एहसान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बुचियाना के इलाका जफरवाल से जड़ावाला तक जो है वो 23 मकामात ऐसे हैं जहां पर रेलवे फाटक जो है वो सिरे से ही मौजूद नहीं है, जिनकी वजह से जो है वो दर्जनों बार हादसा जो है वो रूनमा हुए हैं इन फाटक्स पर, लेकिन जो रेलवे हुकाम है उनकी जानब से कोई इकदाम नहीं किए गए। अब रेलवे की अनोखी मंतक सामने आई है और जफरवाल से लेकर जड़ावाला तक जितने भी मकामात थे जहां पर फाटक मौजूद नहीं थे वहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं और 10 फीट ये बैरियर लगाए गए हैं और हैवी ट्रैफिक जो है उसके लिए तमाम रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब हैवी ट्रैफिक यहाँ पर आती है और आगे से बैरियर लगा हुआ होता है तो उनको मुतबादल रास्ता जो है वो अख्तियार करना पड़ता है और जो अजाफी सफ़र है वो करके अपनी मंजिल मकसूद तक मुसाफिरों को जो है वो जाना पड़ता है। ये बैरियर मेरे में आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई सिर्फ 10 फीट है और यहाँ से कोई ट्रक वगैरह या कोई वैन वगैरह जो है वो या मुसाफिर बस यहाँ से नहीं गुजर सकती। मुसाफिर बस और दीगर ट्रांसपोर्ट को जो है वो मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। जो शहरी हजरात हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि जो अनोखी मंतक रेलवे हुकाम ने यहाँ पर लगा दी है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि हैवी ट्रैफिक के लिए भी ये जगह जो है वो खुल सके। नहीं बल्कि अमलन भी कुछ करना चाहिए। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। चनियोट के सस्ते स्टॉल से चीनी गायब होने लगी। ओपन मार्केट में चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि इंतजामिया सस्ते सेल पॉइंट पर भी चीनी की दस्तयाबी को यकीनी ना बना सकी। महंगाई में पिसे शहरियों का सस्ती चीनी की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, अपडेट कीजिए। मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है, वहीं पर जिले इंतजामिया चिन्योट शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। 17 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 4 जो है वो सस्ते सेल पॉइंट जो है वो बनाए गए थे चीनी के हवाले से, और वहां पर भी चीनी जो है वो अब नायाब हो गई है। चीनी दस्तयाब नहीं है, जिससे शहरी महंगे दामों ब्लैक में 100 रुपए किलो तक जो है वो चीनी खरीदने पर मजबूर है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, चीनी दस्तयाब नहीं है? चीनी दस्तयाब नहीं है जी। यहाँ पे चीनी सस्ती मिलती थी हमें, अब जो दुकानदार दूसरे हैं लोकल वो हमें 100 रुपए 110 रुपए लगा कर दे रहे हैं। हम मजबूर हैं, क्या करें। यहाँ पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं तो नहीं मिलती है हमें। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी हमें सस्ती चीनी यहाँ से मिली जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है, जहाँ पर दूर दराज से आने वाले ये खरीदार हैं जिनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जिले इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि सस्ते सेल पॉइंट पर उन्हें चीनी जो है वो मिल सके। और देखा गया है कि गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो शहरियों की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर इस बात को रियलाइज़ करवाया गया डीसी चिन्योट को कि सस्ती चीनी जो है वो उन्हें नहीं मिल रही है। ओपन मार्केट से चीनी जो है वो गायब हो गई थी और अब एक दफ़ा फिर जो चीनी है वो जो नायाब हो गई है और शहरियों को खरीदारी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जिले इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि जो चीनी के लिए सस्ते सेल पॉइंट बनाए गए थे वहां पर चीनी फराहम की जाए ताकि वो सस्ती चीनी खरीद सके। इंतजामिया चीनी की कीमतों में कमी को मुमकिन बनाए। बाबर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने कार्रवाइयां की। मुजरिम से दूध पकड़ा गया, गुटके की फरोख्त पर कार्रवाई की गई। सफाई के नाकिस इंतजामात पर भी हजारों रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट की अदम दस्तयाबी पर भी महकमे ने जुर्माना आयद किया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से डिवीज़न भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें फैसलाबाद शहर में मदीना टाउन में मौजूद एक मिल्क शॉप को सरबमोहर किया गया और वहाँ पर जो दूध के रखने का अमल था वो दुरुस्त नहीं था। इसके साथ साथ दूध भी जो था वो नाकिस था, सफाई का अमल जो है वो दुरुस्त नहीं था। एक पान शॉप को जो है वो सरबमोहर किया गया है, वहाँ पर 400 पैकेट से ज़ायद गुटखा मौजूद था जो कि ममनुआ है और किसी सूरत में भी इसको बेचा नहीं जा सकता। चनियोट में भी एक फूड पॉइंट के ऊपर कार्रवाई की गई जहाँ पर चीज़ों के ऊपर लेबल मौजूद नहीं था। अशे खुरनो जो थी वो ज़ायदुल मयाद थी।
या नाकस थी और उनको जो स्टोरेज उनकी थी वो भी बेहतर नहीं थी, जिस पर महकमा की जानिब से कार्रवाई की गई। एक और फूड पॉइंट पर मौजूद जो फूड वर्कर्स थे उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं थे, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का इस हवाले से कहना है कि शहरियों को साफ़ सुथरी ग़िज़ा फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी, जहाँ पर भी खिलाफ वर्जी आई कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है रमज़ान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, गोजरा के मिशन रोड जैसी अहम सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया। नाकिस निकासी आब के निज़ाम के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हाफिज फरहान अली मौजूद हैं। मिशन रोड गोजरा पर मौजूद हूँ। मेरे सामने ही एमसी हाई स्कूल जो कि गोजरा का कदीम तरीन सरकारी हाई स्कूल है वो मौजूद है। इसके आगे पानी के जो अंबार हैं सीवरेज के गंदे पानी के, आप देख सकते हैं यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं कारपेट रोड खराब होने के बायस गड़ों में से गुजरकर यहाँ से जा रहे हैं। खवातीन शहरियों के साथ मोटरसाइकिलों पर मौजूद हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। नमाजी लोग भी होते हैं, उनके कपड़े भी खराब हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, यहाँ से गुजर के आए हैं, हमने रोका है यहाँ पे इनसे बात करने से पूछते हैं कि क्या क्या मुश्किलात है इनको सामना करना पड़ा है। भाई आप गुजर के आए तो कितनी मुश्किल पेश आई है? अस्सलाम वालेकुम सर तकरीबन काफ़ी मुश्किल है, खड्डे वगैरह भी काफ़ी बने हुए, तकरीबन 2-3 मंथ हो गए इससे, यही हाल है। इसका भी यही है, साथ वाला रोड भी इसी तरह, वो मेन जो टोबा रोड है वो भी यही हाल है, कोई सही करवाने का है नहीं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं अक्सर इधर, कपड़े वगैरह गंदे, नमाजी वगैरह गुजरते हैं, लेकिन कोई मतलब सही करवाने का कोई निज़ाम नहीं है, कोई पूछता नहीं है आगे हो रहा नहीं हो रहा, कोई पूछताछ नहीं है। बस जैसे गुजरे लोगों को कोई परेशानी हो रही है, सामने वो ये देखो कितना ट्रैफिक भी जाम होता है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है आगे, सही करवाना तो दूर की बात है, हो क्या रहा है, तो कोई निज़ाम है नहीं है, बस घर में बैठे हैं आराम से। जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए, इनका कहना है कि कोई पूछने वाला तक भी नहीं है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करने से पूछते हैं, वही सवाल क्या कहते हैं। आप भी गुजर के आए हैं, आपकी बाइक थी, आपके पाँव भी गंदे हो चुके हैं गंदे पानी से, तो क्या कहेंगे आप? भाई 3 मंथ तो हो गए, इधर वैसे ही पानी रुका हुआ है, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट। काफ़ी रोड ऐसे हैं गोजरे के जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। टोबा रोड जैसे भाई ने बताया, ये साथ वाला रोड भी ऐसे है। ईद के दिनों में इधर बहुत लंबी कतार लग गई थी, बहुत रश था, इधर गुजरना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या अवामी मसाइल को हल करना चाहिए इंतजामिया की जानिब से, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कमालिया का रुख करेंगे, कमालिया में भी सीवरेज मसाइल का सामना है, शहरियों के रिजवान खान हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कमालिया की अहम शाहराह चिचाउतरी रोड मोहल्ला बगाईवाला रोड के अतराफ में जगह जगह सीवरेज के नाकस इंतजामात शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, क्योंकि उन शहरियों का कहना है कि रोड के अतराफ में दुकानें हैं और मोहल्ले हैं, तो रोड के अतराफ में जगह जगह गंदगी के नाकस इंतजामात और बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से औरतों और बच्चे और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनको बुज़ुर्ग ख़वातीन उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात करेंगे मचूर भाईजान, बताइएगा जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, क्या कहते हैं इस वाले? भाई यहाँ पर 2 साल हो गए, पानी यहाँ पर गंदा खड़ा हुआ, तेज़ाब बना हुआ है यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। 2 साल हो गए यहाँ पर गंद और कूड़ा, यहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद नज़दीक, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो भाई यानी महल्ले वाले औरतों बच्चे यहाँ पर कई कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत मुश्किल पैदा हुई है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हम मुतालबा करते हैं कमेटी वालों को कि यार वो आए हैं यहाँ पर ना, अगर हमारा मुतालबा पूरा करें। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी जो हैं वो इंतज़ामिया से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द सीवरेज के इंतजामात को बेहतर किया जाए, ताकि जो यहाँ के मकीन हैं उनकी जो मुश्किलात में आसानी हो। ठीक है रमज़ान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, समुद्री म्यूनसिपल कमेटी शहर को साफ सुथरा रखने में नाकाम है। पार्कों के करीब कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जबकि जगह जगह लगे ढेर बदबू और ताफुन फैलाने लगे हैं। वकास जमील अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, बल्दिया समुद्री की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि समुद्री को साफ़ और शफाफ जो है वो बनाया जा रहा है और कूड़ा करकट जो है वो वक्त पर ठिकाने लगाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जगह जगह पर कूड़ा करकट के जो ढेर नज़र आते हैं, बदबू, ताफुन और जो बीमारियां फैलने का भी खदशा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी, उनसे बात करते हैं। भाई क्या कहेंगे, यहाँ पर कूड़ा जो है वो फेंका जाता है, कि बल्दिया को आपने कुछ शिकायत की है? बल्दिया को बहुत ज़्यादा शिकायतें की है, उनको बताया, बारहा दफ़ा बताया है कि ये उठवाया जाए, लेकिन नहीं उठवाया जा रहा है। ये बल्दिया की गवर्नमेंट की नाअहली है, इससे कई बीमारियां फैल रही है। सुबह लोग पार्क में सैर के लिए आते हैं और उनको सबसे पहले बदबू का सामना करना पड़ता है, जबकि सैर सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन यहाँ पर जो सैर करने आता है वो बहुत बीमारियों का बायस बनता है।
जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि सुबह के वक्त जो है वो पार्क में शहरी सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको बदबू का सामना करना पड़ता है। कूड़ा करकट के ढेर यहाँ पर लगे होते हैं, जिससे बदबू, ताफुन और बीमारियां फैलने का खदशा है, और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको यहाँ से ठिकाने लगाया जाए। जी वकास, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टोबा टेक सिंह से जहां डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का इजलास हुआ, कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर सैयद तनवीर मुर्तजा ने सदारत की। MPA सईद अहमद सईदी, CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज सयाल की शिरकत। डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की मंजूरी दी गई। इस इजलास के हवाले बताएंगे बकार घुम्मन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का आज इजलास कायम डिप्टी कमिश्नर सैयद तनवीर मुर्तजा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें MPA सईद अहमद सईदी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, इसके अलावा CEO हेल्थ और दीगर जो मेंबरान हैं इस काउंसिल के, उन्होंने शिरकत की। और ख़ास तौर पे गुज़श्ता 8 माह से जो हेल्थ वर्कर थे, जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे, उनकी जो तनख्वाहें रुकी हुई थी वो अदा करने की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से काउंसिल में इजलास में बताया गया कि तमाम फंड्स आ चुके हैं और इनके ये तनख्वाहों का मसला हल किया जाएगा। इसके अलावा ज़िले में जितने भी हस्पताल हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं, अर्बन हेल्थ जो THQs हैं, वहाँ पर जो सहूलियात के हवाले से, ख़ास तौर पे जो मरीज़ों और उनके लवाकिन की सहूलियात देने के हवाले से भी जो इंतज़ामिया है उसको हदायत दी गई है कि जो लोग आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि उनकी हुकूमत का विजन है कि ख़ास तौर पे पंजाब में और उनके ज़िला में जो सेहत का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। जो लोग इलाज मुआवजा के लिए हस्पतालों में आते हैं उनको बेहतर एंटरटेन किया जाए और उनको इलाज मुआवजा के लिए किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तमाम जो मेंबर हैं इस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के, उन्होंने मज़ीद बेहतरी के लिए भी तजावीज़ दी, जिस पर कायम डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद की भी कोशिश तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। चिन्योट का रुख करेंगे जहां पर महकमे सेहत के ऐसा इकदाम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम इंतजामिया ने सरकारी अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड्स और स्वीपर्स की ब्लड स्क्रीनिंग का आगाज किया। ब्लड स्क्रीनिंग से हेपेटाइटिस B और C का पता लगाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा City 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। चिन्योट में महकमा सेहत का ऐसा इकदाम सामने आया है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत चिन्योट के तमाम छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों में जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड और दीगर सफाई सुथराई का अमला है, उनकी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ब्लड स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से देखा जा रहा है कि DHQ अस्पताल में ब्लड कैंप भी लगाया गया है, जहां पर इस स्टाफ की जब स्क्रीनिंग की जा रही है और इनको वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त से जब हमारी बात हुई CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ से, तो उनका ये कहना है कि हेपेटाइटिस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हेल्थ ऑफिशियल्स और जो महकमा सेहत के अस्पतालों में काम करने वाले मुलाजमीन है और सिक्योरिटी गार्ड समेत सफाई सुथराई का अमला है, उनकी ब्लड स्क्रीनिंग की जाएगी और इससे मोहल्ले के मर्ज का खात्मा किया जाएगा ताकि इसको जो है वो जड़ से इसका खात्मा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आपने हमें आगाह किया। यहाँ आपको बताएं फर्स्ट सर्कल के अफसरान से CEO फेस्को शफीकुल हसन का अहम इजलास हुआ। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। CEO फेस्को शफीकुल हसन की गर्मी में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत की गई। अवैस अली अपडेट करेंगे। बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर में CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से फर्स्ट सर्कल के अफसरान से अहम अजलास किया गया है और अजलास में जो है CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल को जो है वो खुसूसी हदायत जारी की गई हैं कि जो सार्फिन की जानिब से डोमेस्टिक मीटर्स और कमर्शियल मीटर्स के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं, डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा की गई हैं, उनको जो है वो मीटर की सहूलत फराहम की जाए और इसके अलावा गर्मी की शिद्दत में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए और शट डाउन जो है वो मरम्मती काम के लिए इंतहाई कम वक्त के लिए लिया जाए ताकि इस गर्मी में सार्फिन को ज़्यादा देर बिजली की बंदिश का सामना जो है अब वो ना करना पड़े। इसके साथ साथ CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से फर्स्ट सर्कल के अफसरान को बिजली चोरी के खिलाफ कंपेन तेज़ करने की भी हदायत की गई हैं कि दिन और रात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ रात के औकात में भी नाइट रेड जो हैं वो किए जाएँ ताकि फेस्को के 5 सर्कल्स को बिजली चोरी से जो है वो पाक बनाया जा सके। और इसके साथ साथ सार्फिन की जानिब से जो शिकायत की जा रही हैं उनके फौरी अजाले को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि सार्फिन को जो है वो इस गर्मी में मुश्किलात का जो सामना है वो ना करना पड़े। इसके साथ साथ CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से फर्स्ट सर्कल के अफसरान को जो है वो काम ना करने वाले ऑपरेशन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की भी हदायत की गई हैं कि जो अफसरान
जो SDOs और लैंड स्टाफ सार्फिन की शिकायत में सुस्ती इख्तियार करता है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। तमाम तर बातें जो है वो CEO फेस्को शफीकुल हसन ने। जी ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डॉलर ईस्ट कंपनी के नुमाइंदों की सदर चैम्बर और सीनियर नायब सदर से मुलाकात हुई, जिसमें फैसलाबाद की सतह पर सरमायाकारी बढ़ाने और सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ मौका फराहम करने के हवाले से बातचीत की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे शिराज भट्ट से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर मलिक दिल आवेज साहब जिन्होंने आज डॉलर ईस्ट कंपनी के जो मेंबर हैं उन्होंने यहां पर आके विजिट किया है और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम समेत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब मजीद से मुलाकात भी की है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिज विजिट, क्या मकसद है उनके इस दौरे का और इससे किस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी फैसलाबाद की जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मलिक साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर इन चैम्बर। मुझे थोड़ा बताइएगा कि आज जो मुलाकात रही है उसका 1 पॉइंट एजेंडा अगर हम उसको बयान करना चाहें तो किस तरह से बयान करेंगे? Thank you so much. First of all, being the Chief Executive Officer Darson Securities, मैं शुक्रिया अदा करना राना साहब दा, साकिब साहब दा। तो मेरा बेसिक विज़िट जो है करने का मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है और बिज़नेस हब है एक, यहाँ पे बिज़नेस का एक वास्ट पोटेंशियल नज़र आता है और पाकिस्तान को जो डॉलराइजेशन और उसकी ज़रूरत है और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेट करती है और वही हमारा मेन एक्सपोर्ट और डॉलर कमाने का एक रेवेन्यू भी है, एक सोर्स है। तो मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए डार्सन सिक्योरिटीज़ अपने रिसर्च को और अपनी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करें बिज़नेस कम्युनिटी को और ये वहाँ से इक्विटी रेज कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी बिज़नेस की एक्सपेंशन जो है उसमें जा सकते हैं। तो ये विज़िट था और मेरी राना साहब से यही। राना साहब, इस पर आप इत्तेफाक करते हैं कि इससे हम वाकई में अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। देखें, मैं सबसे पहले तो मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये कराची से तशरीफ़ लाए और हमारे मेंबरान जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि आओ, अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन देना चाहते हो तो हम आपको वो प्लान देंगे कि जिससे आप बेहतरी की तरफ जा सकते हो। अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हो तो हम आपको प्लान बना के देंगे। अब ये प्लानर भी हैं और उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि आज की ये जो हमारी मीटिंग है बड़ी फ्रूटफुल रही है और इंशाल्लाह कारोबार के वसीम मौके पैदा होंगे। आपका शुक्रिया शिराज, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च ने दाखिले शुरू कर दिए हैं। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालबात जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है उनके लिए खुशखबरी है कि वो NFC में अब इंजीनियरिंग के शोबाजात में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि UET की तरफ से जो ऑनलाइन एंट्री टेस्ट है वो ले लिए गए हैं और इसके बाद NFC इंस्टीट्यूट की तरफ से एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं और 19 अगस्त तक जो उम्मीदवार हैं उनसे दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मांगी गई हैं। इस वक्त इंचार्ज डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं NFC के डॉक्टर अशरफ डोगर, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग यहाँ पर ऑफर की जा रही है और क्या क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं? सर, हमारे पास BSc सिविल इंजीनियरिंग, BSc टेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc टेक्नोलॉजी, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSc टेक्नोलॉजी में 80 सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं। उसके बाद BSc केमिकल इंजीनियरिंग में 100 सीट्स हैं। इसके साथ MSc केमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ हो रही है जिसमें 20 सीट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर साइंस BSc ऑनर हो रही है, उसका एडमिशन खुला है, BBA का एडमिशन खुला है और इसमें जो है 50% जो हमारी सीट्स हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस बेस पे हैं और ये तमाम फर्स्ट प्रेफरेंस पे दाखिले होंगे। शुक्रिया, आपने अपडेट किया।